नमस्कार, क्लासिकल कनेक्ट में आप सभी का स्वागत है। क्लासिकल कनेक्ट की इस सीरीज़ में हम आपको क्लासिकल फील्ड से जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियों से कनेक्ट करेंगे। आइए देखें उनके विचार हमसे मिलते हैं, अलग है या किस मोड़ पर जाकर मिलते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं गुरु श्री दीपक मजूमदार जी, जो भरतनाट्यम फील्ड की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। नमस्कार गुरुजी, क्लासिकल कनेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम क्लासिकल डांस सुनते हैं तो सबसे पहले एक इमेज आती है कि क्लासिकल डांस और लड़कियां का कनेक्ट है। क्लासिकल डांस और मेल आर्टिस्ट रेयर हैं आज की तारीख में भी। आपने कैसे सोचा कि आप इस फील्ड में आएंगे? व्हाई नॉट इंजीनियरिंग, डॉक्टर? See, engineering and doctor was far-fetched. ओके। And I was good at studies, but not that superficially and super fine that I can do my doctorate and I can become a doctor, or I can go to engineering and become the engineer. Though in my family, my great grandfather was engineer, Okay. and my grandfather was a doctor, Wow. first skin specialist of Bombay, Dr. Maganlal Daru. Probably I was not born to take up something like that, and I had only alternative dance. Those days, for a boy to learn dance was a subject of ridicule. Why do you dance this? You are so effeminate. Why can't you go and play football, go play cricket? This is not a good activity that you are doing it. So I used to feel very odd, because it was very, very difficult to convince family circle around and friends. But friends, I could overpower them. They said, if dare you say anything, I'll go to the principal's office, because I was so close to all my teachers and school principal, and they used to get very scared. The moment I said, if you want to see that, and I could walk straight to the principal's cabin. So they stopped teasing. But those days, a boy doing dance was a big, big question mark, But my parents encouraged. He said, if you want to do it. But those days there were no university as such. So I was learning. What I was learning, I myself didn't know. What I was doing, my parents never knew, because dance was not their subject. So nobody knew whether I'm learning Kathak, I'm learning Bharatanatyam, and those two streams of classical dance styles were very, very, very popular. I started with Kathak, then in between some Bharatanatyam came, then from Bharatanatyam again I switched over to Kathak, and then back to Bharatanatyam again. It was all, as far as I was moving my hands, they thought he is dancing. ओह हाँ, नाइस। पर फिर दोनों में से, जैसे कथक और भरतनाट्यम में से भरतनाट्यम क्यों, कथक क्यों नहीं? I think मुझे भरतनाट्यम के आभूषण बहुत अच्छे लगते थे. Second thing, the pious orchestration that they were sitting with, the little bit of bhasmam and the nice veshti that they used to wear, and lot of things what I saw was a devotional aspects of it, which I was feeling कि अरे कभी विष्णु पे करते हैं, कभी शिव पे करते हैं, तो कभी देवी पे करते हैं. तो that was a lot of attraction and beautiful poses around you. See, Okay. जब कथक में क्या था, though I started with it, not that I hated कथक, but उसमें इतना सारा calculations. फिर भाव की बात आती थी तो एक छोटी सी कुछ एक आइटम, तब तो मुझे वो पता भी नहीं था कि उसको ठुमरी कहा जाता है, बट इतने से भाव नहीं, मैं तो थोड़ा सा और भी कुछ करें, so except those thumri part of it, it was only a calculations, you see. So I think I was rather interested in doing something which is more devotional. ऐसे नहीं कह सकता कि कथक में devotional aspects नहीं हैं, लेकिन projection wise I think Bharatanatyam has personal that choice. Yes. अच्छा गुरुजी, आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि डॉक्टर कनक रेले जी का आपके लाइफ में टू टेक इट अप एज अ डांस बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. उस बारे में कुछ हमसे शेयर करिए. बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, आज भी रहा है. आज at 60 that I have touched, and she is about to touch 80, but अभी भी मैं उनके पास जा रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ. तो इस कला के युग में अगर मुझे मेरे पेरेंट्स के बाद अगर दूसरा जन्म दिया है, तो सारा श्रेय मैं उन्हीं को देने जा रहा हूँ, और उन्हीं को देता हूँ कि इतनी सारी प्रतिभा होते हुए, इन वन टीचर टू हैव so much of qualities. As a performer, she was beautiful. As a speaker, you can't catch her.
नॉलेज इन्फिनिट। तो ये कॉम्बिनेशन सारा जो उन्होंने ग्रूम किया, जो उन्हों में है, आई थिंक आई वॉज द लकीस्ट वन दैट इवन टुडे आई शेयर दैट रिलेशन एंड शी इज़ लाइक माई मदर, माई सिस्टर, एंड शी इज़ प्रूव दैट। तो वो रिलेशन जो एक बॉन्डिंग था, अनकंडीशनल बॉन्ड, एंड येट आई गेट अ सुप्रीम नॉलेज फ्रॉम हर, आई थिंक इट इज़ माई फॉर्चून। नाइस। गुरुजी, जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप उन्हें बोलना चाहेंगे? ऐसे तो मैं कुछ वन पर्टिकुलर पॉइंट में कहना नहीं चाहूँगा मैं, बट उतना ज़रूर कहूँगा कि एक डेडिकेशन सीखें। जैसे मैंने अपना डेडिकेशन को बरकरार रखा है, उतना करें तो भी बहुत है। ग्लैमर के पीछे ना जाएं। ग्लैमर इज़ लाइक अ शेडो, जितना भागोगे उतना शेडो भागेगा। तो जब छोड़ दोगे आप, अपने आप वो पीछे फॉलो करेगा। पर गुरुजी, ग्लैमर तो आजकल जैसे हम टेलीविजन्स पे देखते हैं, रियलिटी शोज़ हैं, बच्चे वगैरह हैं, बट रियलिटी शो में टैलेंट तो है, लेकिन वो प्राण कहाँ है? आत्मा नहीं है। शरीर डांस कर रहा है, दैट्स ऑल। पैर पटक रहा है यहाँ से वहाँ, समरसॉल्ट ले रहा है या स्पिन कर रहा है, दैट इज़ नॉट आर्ट। फिजिकल इज यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी। कनेक्ट कहाँ है? यू आर नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द आत्मा इन परमात्मा से जो आपकी लिंक होती है। डू यू सी इट? यू डोंट सी दैट। तो ये जब तक आपका यूथ है आप करोगे, बट वेरी सून यू विल बी हैंडीकैप, बिकॉज जिस तरह से आप शरीर को करते हैं, शरीर की भी एक लिमिट होती है। रबर को आप कितना तानोगे? ज़्यादा करोगे तो टूटेगा ना, शरीर भी टूटेगा, अभी पता नहीं चलेगा, बट ये आज के बाद जब आप 25 साल के होगे आपको बिल्कुल पता चलेगा। आई डोंट विश देम बैड, but this is not the way that the God has told you to use. The body is the vehicle to transcend from this world to the other world. लेकिन हम वो क्लासिकल तो पढ़ते सुनते ही नहीं, सुनना चाहते नहीं हैं। इसने किया तो हम करते हैं, उसने किया तो ये करते हैं। तो ये प्रलोभन है और ये अनुकरण है, अनुकीर्तन नहीं है। अगर डांस की भाषा में कहा जाए तो राम को मैंने नहीं देखा, राम को आपने नहीं देखा, लेकिन जब मैं राम करता हूँ तो नहीं, राम ऐसे ही बिहेव करेंगे। ये एक हम निश्चित रूप से ऑडियंस तक पहुँचाते हैं, और नहीं ये होना चाहिए। तो ये जो बात होती है उसको अनुकीर्तन कहा जाता है कि आपने नहीं देखा। अगर मैं उसका अनुकरण करूँ तो उसमें आइदर आई प्ले द रोल ओवर प्लेड और अदरवाइज आई अंडर प्ले द रोल। यू कैन नॉट डू दैट। आज मैंने इंदिरा गांधी को देखा है और समवन से दैट आई एम लुकिंग लाइक इंदिरा गांधी। नो, क्रिटिसिज्म विल बी एट वंस। बट मैं कृष्ण कर रहा हूँ, कृष्ण के युग में तो आप जन्मे भी नहीं थे, आपने देखे भी नहीं है। तो वो साक्षात्कार जो होता है वो सिर्फ क्लासिकल आर्ट फॉर्म में होता है। सो आप फ्यूजन रेकमेंड करेंगे कभी भी किसी को? क्लासिकल, बॉलीवुड? बिल्कुल नहीं। आपको केक की आइसिंग को लेके पूरन पोली पे दिया जाएगा तो आप खाओगे? मेरी पूरन पोली अच्छी है, मैं नहीं उसको हाथ लगाऊंगा। एंड विद इन क्लासिकल फील्ड फ्यूजन, जैसे काफी लोग क्लासिकल डांस फॉर्म्स में भी फ्यूजन्स होते हैं या मर्जर्स होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फ्यूजन इज कंफ्यूजन। जब मुझे नहीं आता है मैं फ्यूजन पे चला जाऊंगा। लोगों को क्या समझता है? आपको जो देंगे लोगों को अच्छा लगेगा भी, क्योंकि दिमाग का तो काम करना नहीं है लोगों को। बिल्कुल। तो ये फ्यूजन को निकाल दे। अभी शास्त्र क्या कहता है कि आप जब परफॉर्म करते हैं तो आपके रसिकगण जो हैं उनको आपको अपलिफ्ट करना है। इसीलिए आपका जो स्थान दिया है स्टेज का वो ऊंचा दिया गया है। लोग नीचे बैठते हैं, वो नीचे बैठे हुए लोगों को आपको उनकी अविद्या यानी अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ओर लेके जाना है, और आप सूत्रधार हैं। तो जब स्टेज का जो कर्टन खुलता है तो वो कर्टन है इज़ द सिंबल ऑफ अविद्या, अज्ञान। तो अज्ञान और सूत्रधार और वहाँ पे रसिक गण है। जब खुलता है तो सूत्रधार का संपर्क होता है रसिक से, और वो रसिक गण को हमें उठाना है ताकि हम उनको अपने ही भगवान की प्रतिमा दिखा सके। इट इज़ द जर्नी फ्रॉम निराकार टू आकार एंड आकार टू द निराकार। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट गुरुजी। गुरुजी, आजकल स्कूल्स में करिकुलम में क्लासिकल डांस को इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ जी। उस मूव के बारे में आप हमसे बिल्कुल बताएं। अच्छा है।
संस्कार तो बचपन से ही दिया जाता है ना। बिल्कुल। कितने ही अच्छे बीज हैं अपने पास, लेकिन अगर मैंने जहाँ पे लगाए वो पत्थर में डालूंगा तो उसका कोई माने नहीं रखता। उसके लिए यू नीड अ फर्टाइल सॉइल। तो जो फर्टाइल ह्यूमन सॉइल है वो बच्चे में होते हैं। तो जिस तरह से आप उसको संस्कार देंगे उस तरह से अंश आकार है, उस तरह से उसका आकार खिलेगा। गुरुजी, ओवरऑल डेवलपमेंट में क्लासिकल डांस कितना काम कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। हम उसकी कैपेसिटी को जानते नहीं हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन वी से इट्स अ डिवाइन आर्ट मीन्स डिविनिटी। अब जहाँ पे डिविनिटी होती है तो प्योरिटी होती है, प्योरिटी होती है तो आत्मा को छूती है। बिल्कुल। और आत्मा को जब छूती है तो भगवान की ओर पहुँचती है। तो ये अगर संस्कार, ये अगर हम चीज़ उनको बचपन से सिखाएं, हाँ सही बात है कि सारे जिसको सिखाएं वो परफॉर्मर तो नहीं हो सकते, लेकिन एक अच्छे रसिक गण तो हो सकते हैं। और रसिक गणों से भी अगर हम ऊपर उठें तो सहृदय। आज अगर मैं परफॉर्म करते हुए मेरे आँख में अश्रु हैं तो मेरे उस सहृदय के आँख में भी अश्रु आने चाहिए। यानी कि व्हाट आई एम फीलिंग that person also should feel. That is where I become one with my art, I become one with my audience, and I give him the sakshatkara to visualize the supreme whom you have not seen, I have not seen. गुरुजी, आपने बहुत फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, दूरदर्शन के लिए। हाँ जी। कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपके दिल के एकदम करीब है? कौन सा एक कैरेक्टर नहीं है जो मेरे दिल के करीब नहीं है। अब मैं राम भी करता हूँ, शिव भी करता हूँ, कृष्ण भी करता हूँ, और अभी तो हम जेंडर के भी परे हैं। इफ आई हैव टू डू नायिका ऑल्सो, बिकॉज आत्मा इज नायिका, शरीर नायिका नहीं है। शरीर छूटता है तो आत्मा ही चली जाती है, तो आत्मा ही नायिका है और परमात्मा नायक है। आपके पास अगर कोई भरतनाट्यम सीखने आता है लड़का, तो आप उसको नायिका पहले सिखाएंगे? जो पुरुष विद्यार्थी मेरे पास आते हैं जी, उनको मैं दोनों ही रीत से सिखाता हूँ कि श्रृंगार क्या है। श्रृंगार एज अ मैन हाउ यू डू इट, एज अ वीमेन हाउ यू डू इट। अलंकार तो मैन भी पहनते हैं एंड अलंकार स्त्रियाँ भी पहनती हैं, लेकिन पहनने में फ़र्क होता है। आज अगर पुरुष अपनी नायिका को मिलने जाता है तो अपने बाल कुछ यूं करके या कपड़े कुछ ऐसे करके तो नहीं जाएगा, वो भी चाहेगा मैं अच्छे। और सिंस इट प्रोजेक्ट्स द ओल्ड एज, वी मेक हिम वेयर अ ब्यूटिफुल सिल्क धोती। उसमें भी वो छांटता है कि मैं ये पहनूं तो कैसा लगूंगा, ये पहनूं तो कैसा लगेगा। अच्छा, परफ्यूम की जगह पे मैं चंदन लगाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशबू भी आनी चाहिए। मैं पान भी खाऊंगा, मैं अपने बाल भी संवारूंगा, मैं तिलक भी करूंगा, वो भी कस्तूरी तिलक करूंगा। तो देयर इज़ अ वे ऑफ ड्रेसिंग अप एंड गोइंग एंड मीटिंग द बिलव्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप करुणा कहते हैं, बुद्ध को करुणा मूर्ति कहते हैं। क्या तो बुद्ध रोते थे क्या 24 घंटे? करुणा मूर्ति, करुणा तो इमोशन स्त्रियों से जुड़ा हुआ है जी। हर बात में आंसू ब्रह्मास्त्र है, हर बात में रोने को बैठ जाते हैं। तो ये अगर पुरुष को कहा जाए कि आप करुणा मूर्ति हैं, तो क्या वो स्त्री हो जाता है? तो किस तरह से आप उसको, वो भाव को प्रदर्शित करते हैं, उस पर बहुत निर्भर रहता है। गुरुजी, एक डांस क्लासिकल डांसर, मे बी मणिपुरी, कथक, क्या वो दूसरे डांस गुरु से जो दूसरे डांस फॉर्म में उनसे सीख सकते हैं एक्सप्रेसिव पीसेस? मैं चाहूँगा कि अगर एक कलाकार एक डांस स्टाइल को सीखता है तो उसी स्टाइल को सीखे आगे, जी, मिक्स ना करें। ओके। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ को करना। बिल्कुल। गुरुजी, ये डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज जो आजकल भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस फील्ड में हाँ हैं, जी। उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं, डिप्लोमा ऐसा है कि आपकी सुविधा के अनुसार आपको जो समय मिलता है उस समय में आपको कुछ सीखने को मिलता है। जी। जब डिग्री करने जाते हो तो समय भी ज़्यादा होता है जी। और सीखने भी ज़्यादा मिलता है। जी। एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। तो डिग्री के 6 साल लगते हैं, 5+2 नाउ-डेज, तो वो 7 साल। डिप्लोमा तो 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो उतनी छोटी सी अवधि में आप कितना सीख पाएंगे? जी।
बट आज के हिसाब से, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, जब डिग्री और डिप्लोमा, अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वो पेपर चाहिए आपको, तो उस हिसाब से वहाँ पर वो हेल्प करता है। बट लर्निंग के हिसाब से इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और डिग्री लेने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि यू आर क्वालिफाइड। पेपर में आप क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस में आप क्या दिखा सकते हो उस पर आधार है। क्या हमारे गुरुजी डिग्री लेके बैठे थे? नहीं। आज की ट्रेंड है डिग्री लेनी चाहिए, तो डिग्री लेनी चाहिए भी, बिकॉज यू शुड स्टडी। वरना शास्त्र और सांप्रदाय का समन्वय आप कैसे करेंगे? व्हाट शास्त्र सेज, व्हाट सांप्रदाय सेज, कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन आपको उसको मर्ज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोने पे सुहागा है। तो ये अपने आप पे निर्भर करता है। मैंने ले ली डिग्री, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। जी गुरुजी, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शिष्य हैं, जिन्हें मैं कहना चाहूँगी। उसमें बिजनेस वुमेन भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। वो किस चीज़ से आकर्षित होते हैं? पहले तो दे आर वेरी मैच्योर्ड इन देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। जी। अभी जैसे दो उल्लेख आपने दिए, एक तो हेमा जी के लिए मैंने बहुत सारी कृतियाँ कंपोज की हैं जी। और सहभागिनी मैं कहूँगा, वो मेरी शिष्या मैं नहीं कहूँगा जी, बिकॉज मेरे से उम्र में भी बड़े हैं जी। बट एक रिस्पेक्ट जो है उनका कि नहीं दीपक जी आप जो कहें मैं करूँगी। तो ये इतना ऊंचापन है कि इतनी चोटी पे पहुँचे हुए भी आपको वो इतनी विनम्र है, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है। और वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है ज्ञान प्राप्त करना, चाहे आप छोटे हो मेरे से भी, फिर भी आपके पास ज्ञान है, वो मैं लेना चाहूँगी। लेकिन आई हैव टू सी, हेमा मालिनी बनना इतना आसान नहीं है। डेडिकेशन, जब रिहर्सल के लिए तैयार होती है, वो तैयार, आप जाने से पहले वो रेडी रहती है। आजकल के तो बच्चे बैठेंगे, मैं आता हूँ करता हूँ, आती हूँ करती हूँ, ये नहीं। हेमा मालिनी तो क्या, ये खुद अपने आप को कहती है। और आज भी उनके रिहर्सल्स, उनका डेडिकेशन, इसकी वजह ही ये है। और वो कहती भी है कि ये डांस के वजह से जितनी मैं आज यूथफुल दिखती हूँ, जो भी कोई तेज है मेरा, ये डांस के वजह से। और ये सही है। मैं अगर कहना चाहूँ तो उनमें ह्यूमैनिटी बिकम्स डिवाइन एंड डिविनिटी बिकम्स ह्यूमन। जब वो राधा करती है तो राधा लगती है, वो हेमा मालिनी नहीं लगती। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि अपनी ह्यूमैनिटी को डिवाइन बनाएं और डिविनिटी को अपने लेवल पे लाके लोगों को दिखाएं कि क्या है। नीता अंबानी जी भी आपसे सीखती हैं। उनका भी मैं कहूँगा कि इतना ही डेडिकेशन है, इतने ही गुण हैं। आके मैं मिसेस अंबानी हूँ या मैं नीता हूँ करके मैं नहीं, वो बाकायदा पैर छुएंगे, बाकायदा आपको रिस्पेक्ट करेंगे। डांस मुझे इतना आनंद देता है, डांस मुझे इतना सुकून देता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता जो डांस कर सकता है। और मुकेश जी भी कहते हैं जिस दिन दीपक जी आते हैं आपको सिखाते हैं, उस दिन यू आर सो बबली, यू आर सो हैप्पी। शी सेज दैट इज़ माई लाइफ। तो इतना सारा ये होते हुए भी अगर डांस को इतना वो मान देते हैं, ये इससे हमें सीखना है जी, हमें सीखना है। तो आज तो ईगो ही हमें ओवर पार करता है, सीखने का तो किसी को सीखना ही नहीं है, तो वो सीख नहीं है। तो क्लासिकल डांस अपने आप में योगा और एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बिल्कुल है। डांस मैंने तो नहीं किया, मैंने ना तो उसकी उपज ली है, ना ही कोई ह्यूमन बीइंग ने से। व्हेन वी से डिवाइन, हु इज़ द पर्सन हु डांस, हु इज़ द गॉड हु डांस, तो नटराज ध्यान में आते हैं, किंग ऑफ डांस, शिव। एंड ही पर्सोनिफाइज द सुप्रीम मेल। शिव को कह नहीं सकते कि अरे क्या कैसे औरतें जैसे डांस करता है। ताकत आपको बोलने की, ही इज़ द महायोगी, ही इज़ द त्रिकाल ज्ञान योगी, ही इज़ द युग पुरुष योगी। दूसरी बार आते हैं भोगी, दैट इज़ विष्णु, नटवर कृष्ण। तो आया ही है डांस स्वर्ग लोक से। जब शिव करते थे, सरस्वती ने वीणा बजाई, लक्ष्मी जी ने गाना गाया, ब्रह्मा ने ताल बजाए, हाँ, इंद्र ने फ्लूट बजाई। तो मुझे बताइए क्या सुप्रीम ऑर्केस्ट्रेशन होगा जब शिव डांस कर रहे हैं।
और ये नटवर यानी कि कृष्ण का डांस जब भूमि लोक पे करते हैं तो शिव अपना स्वर्ग छोड़ के आते हैं कि भैया आपका ये डांस तो मैंने देखा ही नहीं है, तो स्वर्गलोक को भी वो दुर्लभ है। वैसे नटवर जब भूमि पे करते हैं तो क्या नृत्य होगा। एंड दैट इज वाई शास्त्र से तकारे शंकर प्रोक्तो लकारे पार्वती स्मृतः शिव शक्ति समायोगो ताल इत्यभिधीयते। ताल तांडव, ल लास्य, तांडव और लास्य का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इस ताल, वही तो रिदम है। जिस दिन रिदम चली जाएगी शरीर से प्राण चले जाएंगे। बिल्कुल। गुरुजी, आज हमारे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैसेज ये दूंगा कि जैसे रूपक है मेरे पास, तो जो इतना सिंसियरली काम करता है, तो आज के युग में बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता था जी। बिजनेस में जा सकता था और भी कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं, उसे इसी क्षेत्र में आना है। तो डेडिकेशन अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सीखें, आप पढ़ें, और उसके साथ साथ आप अगर इसको आप व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल 2 घंटे या 3 घंटे के मर्यादा में न रहें। इट इज़ द 24 आवर्स जॉब। दिन रात जैसे सांस चलती है वैसे आपकी लगन उस कला के प्रति होनी चाहिए। ब्रह्मनाद अकेडमी के आप ट्रस्टी हैं। हाँ, ब्रह्मनाद अकेडमी के बारे में आप हमें प्लीज़ कुछ बताएं। ये रचना और ब्रह्मनाद का कंबाइंड प्रोजेक्ट है जी। एंड we are very grateful to the Rachana Institute that they have given us a beautiful platform here, and Brahmanad is again divine sound, and we hope that sound goes in the form of Omkara, and again we give blessings to each and everyone who is associated with us, with me, with Rupak, and he is the one who will take the legacy ahead, and I bless him to do the job very sincerely. And for us it is not the commercial venture, but for us it is the most divine journey towards the Supreme. गुरुजी, आपकी नेटिव प्लेस कौन सी है? वैसे तो गुजरात, सूरत, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं से हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं से हैं, लेकिन मेरा जन्म हुआ यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो बचपन से ही मराठी को सुना, मराठी पढ़ा, तो एक तरफ से देखा जाए तो मराठी, गुजरात कि मेरे पेरेंट्स तो खून गुजराती, लेकिन गुजराती या मराठी या पंजाबी या सिंधी बोलने से सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारत मेरी माता है और मैं उस माता का पुत्र हूँ। ऑन दैट लवली थॉट गुरुजी, थैंक यू सो मच आज आपका मूल्यवान समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप यूथ इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए और क्लासिकल फील्ड में और रुचि दिखाए। अच्छा सीखें, अच्छा करें, एंड अपना डेडिकेशन बरकरार रखें। ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू।